Hello friends. So once again I'm back with another paper of Indian Army GD एग्जामिनेशन। तो आज मैंने ये पेपर लिया है असम रेजिमेंट का। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और हम शुरू करने वाले हैं हमारी मैथमेटिक्स के पेपर ऑफ इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी असम रेजिमेंट। So this paper will be helpful for your upcoming 2021 examinations. So question number 1, the cost of 950 kg mangoes is rupees 38,000, then find the cost of 555 kg mangoes. यूनिटरी टाइप का क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड यूज करना है इसमें आपको। यू हैव टू यूज यूनिटरी मेथड एंड गेट द आंसर। हाउ टू सॉल्व दिस? 950 kg मैंगो, प्राइस इज सर 38,000, डन। ओके, देन वी हैव टू फाइंड द प्राइस ऑफ 555 kg मैंगोज। देन 555 kg मैंगोज को क्या होगा प्राइस, इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। इसमें क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 555 into 38,000 divided by 950. We can cancel this 0 and 0. Then we can go with 5 table. 5 ones are 5 ones are 5 ones are, and then 5 ones are 5, 5 nines are 45, done. 19 table, you must remember आपको 19 का टेबल आना चाहिए। 19 ones are 19, 19 twos are 38, zeros are zeros are हो गया। So 111 into 2 is nothing but 22200, 22,200 is the answer. That is nothing but option number B. The question is very easy. Question number 2, complete the number series. Now number series में देखो, these numbers are basically 4, 9, 16, 25. So first thing you have to remember is all the squares and all the cubes. आपको squares and cubes सभी के सभी लिस्ट आपके माइंड में होनी चाहिए। Squares 1 to लेकर 30 तक, from 1 to 30 all the students of Army, GD, Air Force and Army Technical, this 1 to 30 squares must be in the mind. And again the cubes, 1 to 11 cube, I think this much will be enough for you. 1 to 11 के cubes you have to remember. Sir, what is this 4? 4 is nothing but 2 square. What is this 9? Sir, it is 3 square. 16 क्या है sir? 4 का square, 5 का square है, 2, 3, 4, 5. Next number will be 6 square, that is nothing but 36 is the answer. So simple number है. Sometimes examiner can ask you something different. What he can do? 4, 9. Okay, he can also give this type of things. 4, 9, 25, then he may give 49 and question mark. Now options में ये रहेगा यहाँ पे 81 और दूसरा रहेगा 121. Most of the students, some of the students 81 को टिक करते हैं, but 81 will become wrong. 81 होता है रॉन्ग। क्यों रॉन्ग होता है? देखो स्टूडेंट क्या करते हैं, स्पेशली स्टूडेंट क्या करते हैं, सर ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, जैसे सर 7 स्क्वायर, then 2, 3, 5, 7, 7 के बाद में 9, नहीं सर, this is not the odd number. Sir, 3, 5, 7 odd number, but with 3, 5, 7, 2 is there, then this is a prime series. क्या है ये? Sir, these are the prime numbers. ये क्या है? Sir, they are the prime numbers है। और prime numbers में 7 के बाद में क्या आता है? Sir, 7 के बाद में आता है 11, और 11 का स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा, तो आंसर होगा 121। Okay, so this will be the correct answer for this. So you should remember all of this thing. 212 square is asked. So simple है, there are different techniques, but go with basic approach, that is 212 into 212. Okay, ये आपने किया 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, और बाद में लिख दिया प्लस जो भी 2 1 2, फिर से प्लस प्लस 2 बार, और फिर से 4 2 4 यहाँ पे कंटिन्यू होगा। ओके, सिंपल थिंग है। 4 4 4 plus 4 8 9, 2 plus 2 4 and 4 4 4 9 4 4. Option number C is the answer. There are different techniques also to calculate these squares in the mind, but for your exam they are not needed. You can do this like this. 64 raised to 2 by 3, okay, raised to the power 1 upon 2. Remember one thing, indices identity, a raised to m raised to n is nothing but a raised to m into n. Whenever power over another power, multiply the powers. So we have multiplied the power and a raised to m into n. So see here, the question asked is 64 raised to 2 by 3. What will happen? This 1 upon 2 क्या हो जाएगा सर? मल्टीप्लाई हो जाएगा into 1 upon 2 हो जाएगा। So next step में क्या होगा देखो, this 2 and 2 gets cancelled, right? And finally क्या left है सर? What is left finally? 64 raised to 1 upon 3, because 1 is there at the numerator, denominator में 3 है, तो ये हो गया 1 upon 3. Do you know one thing? Number raised to 1 upon 3 means what? Number raised to 1 upon 3 का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट।
रिमेंबर, नंबर रेज टू 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर, और क्यूब रूट ऑफ 64 इज हाउ मच? सर आपने बोला 4, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 4। सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस तरह से आया, 64 रेज टू 1/2, देन 64 रेज टू 1/2 इज नथिंग बट स्क्वायर रूट। क्या करना है आपको? इस केस में आपको करना पड़ेगा स्क्वायर रूट, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 64 विल बी 8। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है इस तरह से 64 रेज टू 1/3, तो इट इज क्यूब रूट, एंड क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। सो बोथ you have to remember. So answer for this question is 4. Let's move to the next. Question number 5. An employee is required to contribute 10% as provident fund. Okay. In every central government office or private office, private companies, some money will be cut as PF. PF बोल के थोड़ा सा अलग से कट करते हैं, जो कि आपको रिटायरमेंट या इमरजेंसी के टाइम पे मिलता है। तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय इज देयर, दैट एम्प्लॉयज 10% मनी इज टेकन एज PF. If he is getting rupees 13,500 as the net pay after the deduction, when we are taking that 10% from him, after taking that we are giving him 13,500. So what is the monthly general PF contributed? क्या बोला है? What is the monthly general PF contributed? PF कितना दिया उसने? स्टूडेंट इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक मतलब रॉन्ग थिंग। What they do, 10% of 1350, they see 10%, then they do 1350, 13,500, and they just calculate 10%, 0000 cut करते हैं, and they say the answer as 1350. This is totally wrong. Option number D बोलते हैं, but this is the wrong answer. Wrong approach. You should not do like this. You should read the question. Sir, 10% is cut, so you have to assume something. Do you know the salary of the person? Sir, we don't know the salary, original salary, so we have to assume it. Okay, so let the salary of the person be 100 rupees. You can assume 100 in percentage topic. You can assume 100 as the total value. So let the salary of the person be 100. From 100 rupees, we are cutting how much? Sir, 10% is cut. From this, 10% is cut as PF. What is 10% of 100? Sir, 10 rupees. So 10 rupees हमने cut किया as a provident fund. So remaining कितना है? How much the person is getting? After cutting 10 rupees, how much we are giving to the person? Sir, we are giving 90 rupees to the person. From this 100 rupees, 10 rupees cut, we give 90 rupees. But here, how much person is getting? How much we are giving to the person? Sir, 13,500. How much we are giving here? Sir, 90 rupees. But in the question, 13,500. Use unitary method. If 90 rupees represents 13,500, what we have to find? Monthly PF, that is 10 rupees, is how much? So 10 is how much? So now you can use that cross multiply divided by 90, or else directly from here 0 and 0 got cancelled. 9 ones are 9, 9 ones are 9, 4 is carry, 9 कितना हो जाएगा? 9 5s are 45, 9 zeros are 0. 150 into 10 is nothing but 0, 1500 rupees. Option number C is the right answer for this question. I hope you understood this. Question number 6. Circumference of a circle is 88 meter. Find its radius. Circumference formula you have to remember. Circumference is nothing but 2 pi r. This is the formula. Simple सा है, ठीक है? तो 2 into 22/7 ये लिख दिया। रेडियस आपको करना है फाइंड। C की वैल्यू क्या है? सर, circumference is 88 मीटर। 88 मीटर। You know one thing, 22 2s are 44, 44 2s are 88 आप कट कर सकते हो, या फिर ऐसे करो 22 1s are 22 4s are 2 1s are 2 and 2 2s are 4. So radius is equal to what will happen? So this 7 will go that side, it will get multiplied 7 into 2. Radius is equal to 7 2s are 14 meters. Option number B is the right answer. Question number 7. A train travels at the speed of 75 km per hour. How many kilometer will it travel in 45 minutes? What examiner is saying? In 75 kilometer per hour. What do you mean by 75 kilometer per hour? In 1 hour, how much kilometer? 75 kilometer. What is the meaning of 75 kilometer per hour? That is 1 hour में 75 kilometer गया। लेकिन यहाँ पे मिनट्स में है ना, आगे नेक्स्ट वाला पार्ट मिनट में है, तो एक काम करेंगे, हम इसको ऐसे बोलेंगे 60 मिनट्स में 75 किलोमीटर्स जाता है अगर वो ट्रेन,
तो फिर क्वेश्चन क्या पूछा है, 45 मिनट्स में हाउ मच डिस्टेंस इट विल गो. In 60 minutes, 75 kilometer. Then in 45 minutes, how much kilometer? Directly by using unitary, you can solve. Or else you can use that formula, distance is equal to speed into time. You can solve it. But this is easy approach. Cross multiply and get it. 45 into 75 divide by 60. So 15 4s are 60. 15 3s are 45. 3 into 75 when you multiply 21s 5 15, that is 225 divided by 4. 4 1s are 4, 5s are 20, 6 are 24, एक बचेगा, 2s are 8 and 4 5s are 20. 56.25. Option number D is the right answer. So this is by using unitary method also you can solve these type of questions of speed, time and distance. Question number 8. Now here the question, actually I have written, it was the original question but the typing r square was not happening, so I wrote the question here like this. So r plus s is equal to minus 8, r into s is minus 12, r square plus s square equal to question mark, r square plus s square equal to question mark. Whenever these type of things is asked, so you have to imagine what? Algebraic identities. Algebraic identities. ये आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए. Algebraic identities कॉमनली यूज कौन कौन से स्टार्टिंग से ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल क्यूब, ए माइनस बी द होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब. ये सारे आपको 5-6 आइडेंटिटीज यू हैव टू रिमेंबर. सर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर भी है, आर प्लस एस है. डू यू नो फर्स्ट आइडेंटिटी? आपको फर्स्ट आइडेंटिटी याद है? सर ए प्लस बी द होल स्क्वायर कितना होता है? सर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इंस्टेड ऑफ ए प्लस बी कैन आई राइट लाइक दिस, आर प्लस एस द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर इंटू एस. वी कैन राइट 2 इंटू आर इंटू एस. तो देखो आर प्लस एस इज व्हाट? सर इट इज -8. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट -8 द होल स्क्वायर. This we have to find r square plus s square. So I'll just write like this only, r square plus s square. What is the value of r into s? What is the value of r into s? So r into s is nothing but -12. Now -12 into 2 is how much? Sir -12 into 2 is -24. क्या कर रहे हैं हम? 2 into -12 कितना हो जाएगा? -24 हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में -24 हो जाएगा. ठीक है, r square plus s square. और यहाँ पे 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर सर +64. So r square plus s square is equal to, this number will shift that side, so it will become r square plus s square is equal to क्या होगा? 64 plus 24, and 64 plus 24 is nothing but 88 will be the answer. That is option number A. In this type of question you have to focus on these things. क्या सर अगर ये चीजें देखो, ये क्या है? प्लस में है तो a plus b the whole square. Suppose question given is something like this, r minus s is given, r into s is given, and r square plus s square is asked. Okay, then इस केस में r minus s है ना, तो आप यूज करोगे कौन सा? a minus b the whole square का फॉर्मूला, a square plus b square minus 2ab. When r minus s is given, a minus b something is given, you have to use this formula. When positive is given like this, okay, एक मिनट, you have to use a plus b the formula. I hope you got it. Question number 9. The product of two number is 4725. Highest common factor is 15. First number multiplied by second number is equal to LCM into HCF. ये formula आपको याद रखना है, very important formula. First number multiplied by second is equal to LCM into HCF. Okay. So first number into second number is nothing but, इसको क्या बोलते हैं हम? Sir, this is called as product. Product is equal to LCM into HCF. So product is how much? 4725. Directly examiner has given 4725 is the product. LCM we have to find. Highest common factor कितना है? The highest common factor is 15. We can directly cancel from LHS to RHS. देखो 15 1s are 15, 15 3s are 45, 15 1s are 15, बच गया कितना सर? 7. 15 5s are 75. LCM for this question is 315. Average of 10, 20, 30, 40, 50. देखो सिंपल नंबर है आपके पास. Orally don't use the formula, directly you have to answer this. But whenever this gap is same,
जब कभी भी गैप बिटवीन द नंबर्स इज सेम, सर व्हाट इज द गैप, 10 10 10 10, गैप क्या है 10 10 10, तो सेंटर मोस्ट नंबर इज नथिंग बट योर एवरेज, सेंटर नंबर इज नथिंग बट योर एवरेज। कब होता है ये याद रखना है, व्हेन द गैप इज सेम, व्हेन गैप बिटवीन द नंबर इज सेम, सेंटर नंबर इज नथिंग बट एवरेज, सेंटर नंबर इज एवरेज, ये चीज आपको याद रखनी है, लेकिन गैप सेम होना चाहिए। या फिर गैप सेम नहीं है तो यूज करो एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट फॉर्मूला। Okay, for that previous question answer is 30, you can take this. Find the area of a circle made by 1 meter wire. तो 1 मीटर वायर है हमारे पास, देखो एक वायर होती है, ये एक वायर है हमारे पास, इसका लेंथ क्या है सर 1 मीटर है। दिस वायर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सर्कल इट, I mean we have to make it a circle from this wire like this. तो when this wire gets bent like this, ऐसे हम सर्कल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा सर, वो circumference बन जाएगा, circumference of the circle बनेगा। तो कभी भी when the wire is made a circle मतलब वो क्या बन रहा है, that is converting to circumference। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फॉर्मूला circumference का, circumference of the circle C is equal to 2 pi r होता है, ये एक आपको याद रखना है। लेकिन एक चीज याद रखिए, देखो सर्कम फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल मेड बाय 1 मीटर वायर, तो ये 1 मीटर यहाँ पे आ गया आपका 1 मीटर वायर, ओके 1 मीटर इज सर्कमफरेंस, बट द ऑप्शंस देखो क्या है, स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, बट व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस 1 मीटर, यूनिट मस्ट बी सेम, 1 मीटर इज नथिंग बट व्हाट सर, 1 मीटर इज नथिंग बट 100 सेंटीमीटर, सो जस्ट रिमेंबर मेकिंग द यूनिट सेम। So circumference is 1 meter, so better I will write C is equal to 100 centimeter, circumference is equal to 100 centimeter, okay, and 2 as it is, what is the value of pi, you can keep pi as it is या फिर आप लिख सकते हो 22/7, चलो लिख ही देते हैं, into radius r, r पता है आपको, नहीं पता, ठीक है, रेडियस गिवन है, नहीं गिवन नहीं है, तो रेडियस ही हमें फाइंड करना पड़ेगा, एंड दैट रेडियस वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इन व्हाट, एरिया ऑफ द सर्कल। देखो एरिया ऑफ द सर्कल के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में फॉर्मूला ये तैयार होना चाहिए था, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर सर, नाउ पाई वैल्यू एवरीवन नोज 22/7, बट रेडियस वी डोंट नो, एंड टू फाइंड द रेडियस वी हैव यूज्ड दिस c इज इक्वल टू 2 पाई r, सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r, फ्रॉम दिस वी गॉट द रेडियस, दैट इज रेडियस क्या आया सर, रेडियस आया हमारा 100 इंटू 7, 100 इंटू 7, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 इंटू 22 हो जाएगा, 2 इंटू 22 ये कितना है 2 इंटू 22 सर 44, तो ये आ गया आपका रेडियस, तो ये रेडियस आपको सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। अब इस केस में क्या होगा देखेंगे, आई थिंक ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो रहा है हमारा, देखो 22/7 पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस कितना है सर, रेडियस 100 इंटू 7, 700/44 जो भी है, ठीक है, 100 इंटू 7 ही लिखेंगे हम बेटर, 100 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 44, लेकिन स्क्वायर है तो वंस अगेन 100 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 44, स्क्वायर था इसलिए 2 बार किया सर, 7 and 7 गॉट कैंसल सर, 22 1s are 22, 22 2s are 44 सर, 2 1s are 2 and 2 50s are 100, सी व्हाट इज लेफ्ट फाइनली 100, यहाँ पे 50 है 7 है, तो इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई कीजिए ज़रा सा सही से, मैं इस साइड कर देता हूँ नीचे, यहाँ पर मैं यहाँ पे इसको नीचे लिख देता हूँ, देखो ये क्या हो जाएगा 7 5 कितना हो गया 35, और जीरोज कितने हैं 1 2 3 जीरोज है टॉप में, डिवाइडेड बाय कितना है सर, नीचे है डिवाइडेड बाय 44, आप चाहे तो 44 का टेबल 4 का टेबल यूज़ करो और सॉल्व करो सर, 4 1s are 4, 4 1s are 4 एंड 4 8s are 32, 3 बचा सर, 4 7s are 28, 5s are 20, 4 0s are 0, 11 का टेबल यूज़ करेंगे सर, 11 1s are 11, 11 7s are 77, कितना रिमाइंडर है सर 10, 11 9s are 99, रिमाइंडर इज सर 6, 11 5s are 55, 795 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर डी में आंसर आ रहा है हमारा 795.45 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो एक चीज़ याद रखिए, सर्कल के क्वेश्चन स्पेशली 2 टाइप से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, एक तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड समटाइम्स सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, दोनों ही फॉर्मूला आपके माइंड में रहना है। समटाइम्स
वायर, जब भी वायर से हम सर्कल बनाते हैं तो रिमेंबर सर्कमफरेंस विल कम एंड फ्रॉम दैट सर्कमफरेंस फाइंड द रेडियस, दैट रेडियस सब्स्टिट्यूट शियर। ओके, दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। दूसरा टेक्निक भी है इसमें, लेकिन वो करने से बेटर यहां से आप कॉन्सेप्चुअल मेथड इसे याद रखिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3:8 इक्वल टू क्या बोला है 6:6। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हो 3/8 इक्वल टू 6/x करके लिख सकते हो। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो पहले तो न्यूमरेटर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, उसके बाद में क्या होगा सर, x विल गो दिस साइड and this 8 will come this side. Sir, x 1 za x and 8 2 za sir 16. Answer for this question will be 16. Question number 13. Simple interest in 3 years at annual rate of 5% is rupees 180. Find the principal. Two methods से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। मेथड 1 by using formula, मेथड नंबर 2 डायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, देखो 3 years टाइम है, 5% रेट है, 5 3 जा 15%। ठीक है, डायरेक्टली चाहे तो देखो 15% अगर 180 है तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होगा। 100% इज हाउ मच सर, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 112 जा 1200। ये है आपका डायरेक्ट आंसर। लेकिन आपको अगर फॉर्मूला यूज करना है तो फॉर्मूला होता है सर SI इज इक्वल टू PTR/100। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। सो प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, नो प्रॉब्लम। सिंपल सा है सर। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 180 आया। प्रिंसिपल कितना है सर, ओके सिंपल इंटरेस्ट एट द एनुअल रेट इज 180। फाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ही फाइंड करना है। टाइमिंग कितना है सर, टाइमिंग 3 ईयर्स है। व्हाट इज द रेट सर, 5% डिवाइड बाय 100। ओके लेट अस कैंसिल दिस। यू कैन 5 3 जा 15 आप डायरेक्टली बोल सकते हो, या फिर 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 कट किया सर, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 इंटू 12, दैट इज नथिंग बट 1200। सो दिस इज द आंसर। इसमें मैंने क्या किया था, यहाँ पे टोटल रेट आपको फाइंड करना पड़ता है। सर टोटल रेट 1 ईयर का 5%, सो सिंपल इंटरेस्ट मीन्स 5% एवरी ईयर, 5% दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर 5%, नेक्स्ट ईयर 5%, टोटली 5 5 5 15%। 15% is the rate, that much extra money we are getting, and here we are getting how much 180. 15% means 180 rupees, then principal is always 100%. Remember principal is always 100%, तो 100% को कितना, this is by unitary method। 45% of 640 plus 64% of 450 is equal to question percent of 1440। देखो क्वेश्चन में आप चाहे तो बेसिक से कर सकते हो 45/100 इंटू 640, या फिर मैंने इमेजिनेशन क्या किया इसमें 45 640 45 640 2 टाइम्स इट इज प्रेजेंट, द सेम टर्म इज प्रेजेंट 2 टाइम्स। क्यों, देखो एक चीज मैं बताता हूँ, 45 डिवाइड बाय 100 इंटू 640, ईयर यहाँ पे क्या है सर 64/100 इंटू 450। क्या है दोनों टर्म सेम टू सेम है, क्या है दोनों टर्म सेम टू सेम है। देखो यहाँ पे ये 45 है सर, यहाँ पे भी 45 है, इंटू 10 एक है इधर, यहाँ पे भी इंटू 10 एक है, तो दोनों ही टर्म सेम है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ सेम टर्म 45/100 इंटू 640, क्योंकि 2 बार प्रेजेंट है। दिस इज 1 टाइम, दिस इज 1 टाइम, टोटली 1 + 1 इज नथिंग बट 2 टाइम्स। 2 टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू x% ऑफ, क्वेश्चन को कभी भी आप x करके कंसिडर करो, x परसेंट मीन्स व्हाट, डिवाइड बाय 100 इंटू 1440, डन। सो वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ x। सो एवरीवेयर इट इज इंटू इज देयर, व्हाट आई विल डू दिस हियर, दिस 100 and 100 I will cancel, 100 and 100 I will cancel। देखो this 0 I will cancel with this 0, then this 2 1s are 2, then 2 7s are 14, 2 2s are 4 cancel। 72 and 64 को भी कट करेंगे, हाँ 72 और 64, नहीं तो एक काम करेंगे 45 72 को कट करेंगे, वाई 9 के टेबल में आता है, 9 8 जा 72, 9 5 जा 45, बाद में 8 का टेबल यूज करो सर, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, सब कुछ कट हो गया, डन। सो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है सर, 8 5 जा 40 आ रहा है। सो x की वैल्यू आ गई सर 40। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। आपको अगर ये 2 इंटू नहीं समझ में आया तो इंडिविजुअली सॉल्व करो, आप देखोगे दोनों का ही आंसर इक्वल ही आएगा। ये फर्स्ट पार्ट भी सेम होगा, सेकंड पार्ट भी सेम ही होगा, तो दैट इज द रीजन मैंने इसको डायरेक्टली 2 टाइम्स लिया है। ओके, यू कैन डू लाइक दैट।
लास्ट क्वेश्चन पूछा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट मतलब राउंड फिगर करना है आपको। सो इंस्टेड ऑफ 700.05 राउंड फिगर आप क्या करो इसको, देखो 140%, 145 है ना, ये तो 145% ऑफ 700.05 है ना, 700 कर दो इसको, राउंड फिगर क्या कर दो आप 700। अप्रोक्सीमेट का मीनिंग ही ये होता है कि यू हैव टू मेक इट राउंड फिगर। प्लस 22.99 कैन बी रिटन एज सर 23 इनटू दिस क्वेश्चन। देखो यहाँ पे है 15.5, आप चाहे तो 15 भी कर सकते हो, लेकिन वेरिएशन थोड़ा आता है। सिंस ऑप्शंस बहुत दूर दूर है तो आई विल कंसिडर दिस एज 15, कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना है, 2-3 चीज मैं बताता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, सर 7 5 जा 35, सर 7 4 जा 28 प्लस 3 31, 7 जा 7 प्लस 3 10, 1015। और यहाँ पे कितना हुआ, 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, 30 प्लस 4 34। देखो 345 actual answer should be more than 345 here. Why? Because this is 15.5, इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं करना है, बट देन ऑल्सो मैंने किया। लेकिन माइंड में एक चीज़ याद रखना है, दिस आंसर मस्ट बी मोर देन 345, थोड़ा सा 345 से ज़्यादा आएगा। नाउ लेट अस ऐड दिस नंबर्स, 5 + 5 सर 10, ओके 4 + 1 5, 5 + 1 6, 3 + 0 3 एंड 1, 1360। 1360 से आंसर थोड़ा सा ऊपर आएगा, इट विल कम लिटिल बिट बिगर। व्हाई? बिकॉज दिस वाज 345, आंसर वाज लिटिल बिट मोर देन दिस, सो आंसर विल बी 1360 से थोड़ा सा प्लस के साइड में। सो 1360 प्लस समथिंग इज नथिंग बट हियर वी कैन सी 1371। यू कैन टेक द नियरेस्ट आंसर, दैट इज नथिंग बट 1371, that is option number D. So these were your 15 questions which were asked in the Assam Rally, okay, of Indian Army GD examinations. So in upcoming days मैं और भी पेपर्स आपके लेके आऊँगा। Till then practice well, don't wait for exam dates, practice हमेशा करते रहिए। और जो कोई आपको suggestions देना हो, any suggestions if you want to give, you can just feel free to comment under this thing. And yes, subscribe the channel and give a like if you like this video. Thank you.